Hey there, curious minds. Welcome back to Learn IQ, your go-to destination for all things education. I am Smriti Gautam and I am thrilled to have you join me on this learning adventure. Today we are diving deep into a topic that will help you boost your IQ and expand your knowledge. Ever wondered how you can sharpen your critical thinking skills to solve problems like a pro? Stay tuned because we have got some mind-blowing strategies coming your way. But before we dive in, make sure you hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a chance to enhance your intelligence with our videos. Now, if you are new here, let me tell you a bit about myself. I have always been passionate about learning and exploring new ideas. Throughout my journey, I have discovered some fantastic techniques to help you level up your brain power. Just take a look at some of our fantastic viewers who have applied these strategies and seen impressive improvements in their academic performance and problem solving abilities. Now alright, let's get down to business. In this video, we will cover 3 key methods to boost your IQ and become a master thinking. We will break them down step by step so it's easy to follow along and implement in your daily life. So grab a notebook and a pen because you won't want to miss any of these valuable insights. Let's embark on this exciting journey together. And remember, at Learn IQ, we believe that learning never stops. If you found this video helpful, don't forget to give a thumbs up and share it with your fellow knowledge seekers. Now let's dive in and discover the secrets to unlocking your full intellectual potential. So today we embark on an exciting journey through the pages of history to explore the fascinating era of the दिल्ली सुल्तान. पूरे चैप्टर को समझने से पहले एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहूँगी कि एक्चुअली ये चैप्टर द दिल्ली सल्तनत है किस बारे में. In this video, we will unravel the rise and fall of the Delhi Sultanate, exploring the incredible tales of dynasties and the rulers who left an indelible mark on the India's cultural and political landscape. But first, let's set the stages. The Delhi Sultanate thrived from the 13th century to the 16th century, ruling over vast territories across northern India. It was a time of innovation, religious diversity, and architectural marvels that continue to amaze us today. Before the Delhi Sultanate, India was a tapestry of empires and kingdoms. But in 1192 CE, everything changed. Enter Qutbuddin Aybak, a Turkish general whose victory at the Battle of Train paved the way of the Sultanate's foundation. Over the century, powerful dynasties took the reins of the Delhi Sultanate. The slave dynasty led by Aybak and his successor set the tone for the Sultanate rule. Then came the Khilji, the Tughlaqs and the Sayyids, each with their unique contributions and challenges. Made the legendary rulers, Razia Sultana, known for her brief yet impactful rule as the first female monarch of Delhi. Alauddin Khilji, a military genius who expanded the empire to its zenith, and Firoz Shah Tughlaq, a benevolent ruler and patron of arts and culture. The Delhi Sultans were not only warriors but also visionary administrators. Their governance system included provisional governors, military commanders, and innovative revenue collection method. During their rule, India saw an explosion of cultural achievements. Persian literature flourished, and awe-inspiring monuments like Qutub Minar and Alai Darwaza were built, still standing tall today. The Delhi Sultanate embraced commerce and trade. India became a hub for silk, spices, and precious gems, attracting merchants and distant lands, contributing to the prosperity of the region. The Delhi Sultanate was an era of religious diversity. All the Hindus, Muslims, and the other communities coexisted, and some rulers even practiced religious tolerance, allowing the flourishing of diverse traditions. This period witnessed a beautiful blend of cultures, resulting in architectural marvel like Qutub Minar complex, displaying both Islamic and Hindu architecture elements. However, with power came challenges, external invention and internal conflicts weakened the Sultanate over time. The Tughlaq dynasty ambitious plans and administrative experiments also led to its eventual deadline. Despite its eventual downfall, the Delhi Sultanate left an enduring legacy. It laid the foundation for the Mughal Empire that followed, shaping the course of India's history for centuries to come. सो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था. अब मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली द दिल्ली सुल्तान जो चैप्टर है हमारा, ये किसके बारे में बता रहा है और इसका क्या नज़रिया है. तो सबसे पहले जो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, इसके बारे में जानेंगे. तो 12th सेंचुरी के मिडिल में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जो कि चहमान नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने हरा दिया था. तो तोमरों और चौहानों के राजकाल में जो दिल्ली का जो वाणिज्य एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था. तो उस समय शहर में बहुत सारे ऐसे समृद्धि व्यापारी रहते थे, और वो व्यापारी जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था. तो 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका कंट्रोल जो था वो उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था. तो जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम को जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने एक अनेक नगर बसाए थे. ठीक है, तो इस फिगर में देखिए आपको दिया हुआ है फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला हो गया, फिर हौज खास हो गया, उसके बाद तुगलकाबाद हो गया, दिल्ली या कुनमा हो गया, कुतुब मीनार, हिजे सुल्तानी. तो ये 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हुआ करते थे.
इस पिक्चर में कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में दिए हुए हैं और उनके शासक के बारे में दिए। तो सबसे पहले देखिए आपको राजपूत डायनेस्टी के बारे में दिया गया है। तो तोमर जो है वो स्टार्टिंग 12th सेंचुरी से 1165 तक इनका शासन रहा है, जिसमें अनंगपाल जो कि 1130 से 1145 तक इनका शासन रहा है, चौहान 1165 से 1192 तक, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक, एंड जो स्टार्टिंग में तुर्की शासक आए थे उनका 1206 टू 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया एंड गयासुद्दीन बलबन, फिर खिलजी वंश आए थे, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक वंश आए थे। सो आप ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है ये डेट काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो अब है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो जितने भी हमारे सिक्के होते हैं या जो भी भवन निर्माण कलाएँ के माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएँ मिलती थी और महत्वपूर्ण थी इनकी तारीखों से जो भी सुल्तानों के शासनकाल थे उनके बारे में जानकारी मिलती थी, और प्रशासन की भाषा जो वो लिखते थे वो फारसी हुआ करती थी। इस पेज में देखिए आपको 4 चित्र दिखाए गए होंगे, ठीक है। पहला है कागज़ तैयार किया जा रहा है, दूसरा में है आपको लेखन कार्य, तीसरा है कि महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जा रहा है, और चौथे पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है जिल्द तैयार कैसे किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर देखिए द सर्किल ऑफ जस्टिस, इसमें क्या है कि लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जो काफ़ी लिटरेट होते थे उस समय, लिटरेट व्यक्ति इन्हें माना जाता था, जो भी घटनाएं उस समय घटित होती थी उसका वे वर्णन करते थे, और जो शासक होते थे शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो 13th सेंचुरी के इतिहासकार थे फर्क ए मुदब्बिर ने, उन्होंने लिखा था कि राजा का जो काम होता है वो सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते हैं, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए कर से, राजस्व से, मगर किसान भी कर तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे, ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा। तो ये एक हिस्टोरियंस है जो कि उस समय उन्होंने सारे सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया था। अब रजिया के बारे में जानने की बात है कि मिनाज ए सिराज जो थे उन्होंने रजिया के बारे में लिखा था कि उनका सोचना था कि जो हमारे गॉड हैं, जो ईश्वर हैं, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार जो फीमेल है, स्त्री है, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का जो शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए मिनाज ए सिराज पूछता है खुदा को रचना के खाते में उसका ब्यौरा, चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता था, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने जो भी अभिलेख थे और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश, जो अभी का आंध्र प्रदेश है, के वारंगल क्षेत्र में किसी समय कातवी वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिदिदा, उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में यहाँ पे कहता है कि व्यक्त कीजिए कि उन्होंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से फीमेल जो हमारे जो राजा होते थे उनका जो पावर था, शासन करने का जो तरीका था, और जो हमारी स्त्रियां जो शासन करती थी उनके तरीकों में क्या अंतर था। 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग के जो वर्ष थे उसमें दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो था वो गैर सैनिकों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे फैला हुआ नहीं था। तो शहरों से संबंध, लेकिन उनके दूर के जितने भी प्रदेश जिन पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री और व्यापार के लिए जो रसीद थी या कर थे या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के जितने भी गैर सिंध शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छीन भिन हो जाते थे। तो शासन को अफगानिस्तान से आने वाले जितने भी हमलावर थे और उन सूबेदार से बराबर जितनी भी चुनौती मिलती रहती थी, मतलब वहाँ के जो भी राजा थे वो जो चुनौती देते रहते थे लड़ाई की, तो जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। सो इन सब चुनौतियों के चलते जो सल्तनत थी वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाई हुई थी। इसके जो संस्थापन गयासुद्दीन बलबन का जो जिस समय शासनकाल था, तो इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ था। तो सल्तनत की जितनी भी भीतरी सीमाएं थी, जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था कि गैरसिंह शहरों की जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर जितने भी क्षेत्र जिसकी स्थिति मजबूत करना है, जो भी अभी जिनकी स्थिति अभी ख़राब है उनको थोड़ी मजबूत करना है उनकी स्थिति। तो यहाँ पर बात ये हुई कि इन अभियानों के दौरान जो गंगा यमुना के दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और जितने भी शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया था। तो ज़मीन किसानों को दे दी थी और उन्हें कहा जा रहा था कि अब आप भैया इस पर क्या कीजिए, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दीजिए। तो व्यापार मार्गों की सुरक्षा और जितने भी आपके रीजनल ट्रेडिंग है उसकी उन्नति के खातिर नए नए किले बनवाए जा रहे थे, शहर बसाए जा रहे थे। दूसरा विस्तार जो है वो सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके एक सैनिक अभियान शुरू किया गया था और यह अभियान जो है वो मोहम्मद तुगलक के समय में ही
अपने चरम सीमा पर ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो जितने भी अभियान सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम या कुछ भी मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ऑलरेडी उन्होंने कर लिया था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन 150 वर्ष बाद जब मोहम्मद तुगलक का राजकाल अंत पर, उस समय जो थे जितने भी सूबेदार थे और जो प्रशासक थे वो मुकदमों के फैसले सुनाते थे और जो कर वसूलने का काम था वो किसानों के से किया जाता था। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका जो नियंत्रण था, जो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं का नियंत्रण था, वो किस सीमा तक था, उसकी बाउंड्री कहाँ तक थी और वह सीमा कितना प्रभावित था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है द मस्जिद। यह जो मस्जिद शब्द है वो अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की आराधना में घुटने और माथा टेक कर सजदा करते हैं। तो जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ पर ढेर सारे जो मुसलमान होते हैं वो एकत्र होकर साथ साथ अपनी नमाज अदा करते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान जिनको इसके बारे में काफ़ी जानकारी होती है उसे इमाम कहा जाता है। और इमाम का जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है नेता। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान जो होता है खुतबा देता है। खुतबा का मतलब होता है कि वो धर्म का प्रचार करता है और अपने धर्म के प्रचार के लिए वो लोगों से इंटरेक्ट करता है। यहाँ पर और भी एक आपको नीचे फिगर दिया हुआ है, तो उसमें आप देखिए ये जो फिगर है वो 12th सेंचुरी के लास्ट के दशक में बनी हुई है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद, और उसकी मीनारें हैं यहाँ पर जो ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं उनकी तरह है, ठीक है। तो इतिहास में, हिस्ट्री में इस शहर को पुराना शहर कहा गया है और इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था। देखिए दिल्ली सल्तनत जैसे एक साम्राज्य था, काफ़ी ज़्यादा विशाल साम्राज्य था, तो यहाँ के जितने भी सूबेदार होंगे और जितने भी प्रशासक होंगे वो विश्वसनीय होने चाहिए और उस समय ज़रूरत भी थी। तो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, खासकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष जो उनके अपने आदमी होते थे उसको सूबेदार के पोस्ट पर नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, मतलब कि वो उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो जो गुलाम थे, इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, मतलब कि जो विशेष गुलाम थे सामंतों और जमींदारों की जगह पर जो ये उस पोस्ट पर नियुक्त किया करते थे उनको बंदगा कहा जाता था, तथा इन्हें जो भी सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। तो उन्हें राज के लिए क्या करना पड़ता था, जो स्टेट होते थे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़े ही सावधानी से उसे ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूँकि पूरी तरीके से किस पर निर्भर होते थे, अपने मालिक पर ही निर्भर होते थे, इसीलिए जो सुल्तान भी विश्वास कर उन पर निर्भर हो सकते थे। तो सिंपल सी बात है कि किसी और पर ना विश्वास करते हुए जो राजाओं के, जो सुल्तान के खुद के गुलाम थे, उन पर विश्वास करना वो ज़्यादा सही समझते थे। यहाँ पर एक ऊपर आप देखिए, यहाँ पर स्लैब्स रादर देन सन्स, मतलब कि बेटों से बढ़कर गुलाम। तो सुल्तानों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का, जो भी बुद्धिमान लोग था, उनका कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते थे। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकार में क्या क्या चीज़ें थी ये देखिए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले को कलाल कहा जाता है, फिरोज़ इल्ज़ाम नामक एक नाई था, और एक बावर्ची था जिसका नाम था मनका तबवा, और एक माली था जिसका नाम था लड्ढा और पीरा। इन जो सभी नामों के बारे में अभी मैंने बताया, ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक के काफ़ी विश्वसनीय लोग थे और उन्होंने इस विश्वसनीय लोगों को प्रशासनिक पदों पर बैठा दिया था। 14th सेंचुरी के मिडिल में जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, उनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने इन नियुक्तियों के उल्लेख में कहा कि सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में ये देखा जाता है कि उन्होंने बावर्ची, मालियों, नाई, शराब बेचने वाले को एक ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठा दिया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो थे वो सुल्तान के विश्वसनीय थे। पहले जो भी सुल्तान थे, सुल्तानों की तरह एक कुछ शासक के नाम है खलजी और तुगलक, इन्होंने भी सेना नायकों को डिफरेंट आकार के जो रीजन्स थे, इलाके थे, उसमें सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो जो भी ये रीजन्स थे वो कहलाते थे इक्ता, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को कहा जाता था इख्तियार, मतलब कि मुफ्ती। मुफ्ती का काम क्या था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स थे उसकी व्यवस्था को बनाए रखना था। उनकी सैनिक सेवाओं के बदले उन्हें वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाके से जो भी कर वसूल होता था वो दे दिया करते थे। कर के रूप में मिली जो भी राशि होती थी वे अपने जो भी सैनिक थे उसको सैलरी के रूप में दे देते थे। और मुफ्ती लोगों पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से चले, बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ये चलता था। उनका कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका जो है स्थानांतरण कर दिया जाता था। जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, इनके जो शासन काल में जो नौकरी करते थे उनमें इतने रिजिड जो रूल्स थे बनाए गए थे और उनका पालन करना भी बहुत ही
जरूरी होता था। तो मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए जितने भी राजस्व की राशि होती थी उसका हिसाब लेने के लिए जो है राज्य के द्वारा एक अकाउंटेंट को नियुक्त किया जाता था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जो मुक्ति राज द्वारा निर्धारित राजस्व की वसूली कर रहे हैं उसकी तय संख्या सैनिक के अनुसार ही हो, क्योंकि कर जो है वो सैनिक की सैलरी के रूप में दिया जाता था। तो जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने क्या किया था कि जो लैंड होते थे और उनके जो स्वामी होते थे वो जो अभी अमीर जमींदार होते थे उनको अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य कर देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो भी भू राजस्व के निर्धारण और उनकी जो वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले आया था। तो सुल्तान के जितने भी प्रशासक थे उन्होंने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़े सावधानी से रखने लगे थे। उस समय 3 तरीके के टैक्स लिए जाते थे। सबसे पहला एग्रीकल्चर पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान का उपज का लगभग 50% होता था। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी पैदावार की, उसका 50% कर के रूप में दे दिया जाता था इनको, सैनिक के सैलरी के लिए अधिकारियों को। दूसरा मवेशियों पर था और तीसरा घरों पर भी कर लगाया जाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत जो भी थे उनका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो गया था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो गंगा के जितने भी मैदानी इलाके में बने घने जंगल थे वो ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की, मतलब कि वहां तक जाने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम नहीं थी। तो जितने भी स्थानीय सरदार थे वो अपना शासन यहाँ पर जमा लिए थे और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमाते थे और फिर भी यह अधिकार कुछ समय तक ही रहता था और फिर ये स्थानीय सरदारों के पास ही चला जाता था। सरदार और उनके किलेबंदी के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। यहाँ पर देखिए कि जितने भी अफ्रीकी देश थे मोरक्को से 14वीं सेंचुरी में भारत आए थे और इन बतूता ने बतलाया था, और जो यात्री आए थे उनका नाम था इब्न बतूता। उन्होंने बतलाया था कि जो सरदार थे वह कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी तो बांस के झुरमुट में भी रह जाते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता है, इसलिए अलग अलग हिस्से आपस में इस तरीके से गुथे हुए होते थे कि उन पर किसी भी तरीके से आग का कोई असर ना हो और वो काफ़ी मजबूत हो। उसके बाद क्या होता था कि इन जंगलों में रहते हुए सरदार जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे, इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, मतलब कि जो भी वर्षा का जल एकत्रित होता था वहां उपलब्ध करवा दिया जाता था। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया था। इसके अलावा उसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा भी झेलना पड़ गया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे, मतलब बार बार वो हमला किए जा रहे थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती का काम हो गया था। तो दोनों सुल्तानों ने किस तरीके से सामना किया है उसके बारे में है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे, 1299, 1300 में और 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की थी। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था तो मंगोल सेना हार गई थी। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थानीय सेना को तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। सेकंड में है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। अब मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता है कि नया गैरिसन शहर बनाने के बाद दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दहलिए कुहना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई थी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी जो थी उसका नाम था दौलताबाद, वहां भेज दिया गया था। वो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। मतलब कि उस स्थान पर जो है वहाँ पर किसान खेती करते थे और किसान खेती के करने के बाद कर के रूप में अपना 50% जो है वो अनाज एज अ टैक्स क्या करते थे, सुल्तान को जमा करवा दिया करते थे और इसी जो 50% का हिस्सा था इस पर सैनिकों का पेट भरा जा रहा था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्य सामग्री इकट्ठा किया गया था, लेकिन सेना की इतनी विशाल संख्या थी कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सुल्तान जो है वो मतलब कि पूरा कर नहीं पा रहा था और इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है कि उन्होंने क्या किया था कि अगर कोई सैनिक आपके लिए काम करे तो आपको वेतन भी देना है। तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को इकट्ठा के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया था और सैनिक जो है अपना आवाज जो भी जरूरी सामान थे वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और इसी आशंका में क्या किए थे कि व्यापारी भी उन चीज़ों की कीमत बढ़ा दिया किए थे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में जो भी चीज़ें थी उनकी कीमत पर, उनके प्राइसेस पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते और फिर निश्चित दरों पर वो सैनिक को दिलाया जाता था और किसी भी तरीके का अगर व्यापारियों के द्वारा रूल्स का उल्लंघन किया पाया जाता था तो उन्हें क्या मिलती थी, सजा मिलती थी।
मोहम्मद तुगलक जो थे उनके द्वारा जो उठाए गए जितने भी आपके प्रशासनिक कदम थे वो हर तरफ से बहुत ही असफल रहे थे और उनका जो जितने भी जिस जगह वो आक्रमण किए थे वो पूरी तरीके से विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला किया था। जब सारी कश्मीर पर भी आक्रमण किया वो भी विफल हो गया, तब उसने क्या किया कि मोहम्मद तुगलक ने तुरान पर हमला किया, करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे बहुत सारी परेशानियां ऑलरेडी पैदा हो चुकी थी। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे, टैक्स में ऑलरेडी वृद्धि हो गई थी, गंगा यमुना के दोआब में अकाल, मतलब कि वहाँ पर लोग इतना अकाल पड़ गया कि लोगों के पास कुछ था ही नहीं और वो बेहोश होकर मर ही जा रहे थे। यहाँ तक कि जो वहाँ की नागरिक थे वो बगावत पर भी उतर आए थे। इसीलिए मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। 15th एंड 16th सेंचुरी में सल्तनत के क्या हालात थे? तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और जो आगरा थी वहाँ पर सैयद तथा लोधी के वंशों का राज रहा था। तो उस समय जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और अपनी अपनी राजधानियों को समृद्ध बनाने लगे थे ताकि उनके राज जो थे वो फल फूल रहे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह पर भी उभर गए, आ गए दिखाने के लिए कि हम भी हैं। तो इस पीरियड में जितने भी स्थापित राज थे उसमें से कुछ छोटे भी थे तो कुछ शक्तिशाली भी थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इसी बीच शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी और उन्हें हराया भी। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्य वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया था और इसकी सीमा थी 1540 से लेकर 1555 तक, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। जो महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को संकेतित किया तो उन्होंने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। Once again, thank you for being a part of our amazing community. Your likes, comments and shares are what keep us going. Until next time, take care, stay awesome and see you soon. Thank you so much for watching.